Hello, Assalamu alaikum. How are you? This is the third lecture on the protozoa. In this lecture, we will discuss about symbiotic lifestyle and protozoan taxonomy. If you want to know basic about the protozoa, please refer previous lectures. So this is a general outline of the chapter that we are consistently following in our previous lectures as well as in the syllabus. So we have discussed this one: evolutionary perspective, life within single plasma membrane, maintaining homeostasis and reproduction. And today we are going to discuss about these two topics: symbiotic lifestyle and protista को हम नहीं. So many protozoa have symbiotic lifestyle. Now, symbiotic lifestyle है क्या? हम जानते हैं कि most of the organism live in some sort of association with other organism. So intimate association between two organisms or two animals or any especially living organism, we term that is the symbiosis. Symbiosis means an intimate association between the two organisms. In most of organism, for the from the evolutionary point of view, from the ecological point of view, they have some sort of association. So that association, symbiotic association, is divided into three main categories. One is known as a parasitism, second is known as a commensalism, and third is known as a म्यूचुअलिज्म. ये तीन एसोसिएशंस हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. सो इन केस ऑफ द प्रोटोजोआ, many protozoa follow the interaction in which one organism live in or on second organism called host, and such association is known as a parasitism. So parasitism and an association in which parasite live on or in an other organism called host. तो parasitism में दो होते हैं, parasite and host. So the host is harmed but usually survive, क्योंकि इस एसोसिएशन में होस्ट को नुकसान होता है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होता है कि वो जिंदगी, कभी कभी हो सकता है कि पैरासाइट का मतलब ये मकसद नहीं था अपने होस्ट को मारना, लेकिन क्योंकि वो मरेगा तो उनकी अपनी जिंदगी जो है दावे पे आ जाएगी. तो होस्ट हार्म्ड टेक्निकली और पैरासाइट इज बेनिफिटेड. Moreover, for parasite to complete one or more life cycle, uh, they need certain hosts. So the relationship between the parasite and the host is often complex. Yes, so some parasites have the life cycle involving multiple hosts. कुछ पैरासाइट अपनी जिंदगी जो है ना दो से ज्यादा होस्ट में गुजारते हैं. तो एक होस्ट को हम क्या कहते हैं? डेफिनेटिव होस्ट, वेयर द पैरासाइट हार्बर सेक्सुअल स्टेज. मीन्स when parasite complete sexual stage या sexual life cycle in particular host, that host is known as a definite host. और जब वो ऑफस्प्रिंग उनके पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे, लार्वा पैदा होंगे, तो दे गोज इनटू द इन अदर होस्ट. दैट होस्ट इज नोन एज ए इंटरमीडिएट होस्ट. और वहां जो दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. सो सिंपली वी टर्म दैट where parasite complete sexual stage, that host is definite, or where parasite complete asexual stage, we call the intermediate host.
और इंटरमीडिएट होस्ट एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो सम लाइफ साइकिल रिक्वायर्स मोर देन वन इंटरमीडिएट होस्ट, क्योंकि उनकी इमेच्योर जो लाइफ स्टेजेस होते हैं वो मोर देन वन होते हैं। स्पेशली जब हम डिस्कस करते हैं, आगे हेलमिंथ में डिस्कस करेंगे, ट्रिमेटोड में डिस्कस करेंगे, उसमें इस तरीके से। So for the life cycle to complete the final or asexual stage must have access to the definite host. तो asexual stage definite host में आएगी, then reproduce sexually there. So these are the some example of the parasitic protozoa. Flagellated protozoa है ना, ये trypanosoma, leishmania, chilomastix, giardia, trichomonas, histomonas, and some are the sporozoa like Toxoplasma, Plasmodium, Babesia, Sarcocyst, Cryptosporidium. कुछ जन अमीबाइड प्रोटोजोआन है, पैरासाइटिक एंट अमीबा, नेग्लेरिया। कुछ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं जो पैरासाइट्स एसोसिएशन को फॉलो करता है, बेलाटिडियम। तो सिंपली इन दोनों स्लाइड को मैं इस तरीके से समराइज करता हूँ कि सम प्रोटोजोआ हैव द पैरासाइटिक लाइफस्टाइल। और पैरासाइटिक लाइफस्टाइल ये होता है कि जिसमें पैरासाइट अपनी होस्ट में अपनी जिंदगी गुजारता है, और ये होस्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। जहां सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट करे उसको हम डेफिनेट होस्ट कहते हैं, और जहां पैरासाइट असेक्सुअल स्टेज इंटरमीडिएट होस्ट। और इंटरमीडिएट होस्ट भी दो से ज्यादा हो सकते हैं। और ये जो है ना सामने आपके इस स्लाइड में जो है ना, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ द पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। Now, the second symbiotic lifestyle is a commensalism. So, commensalism is a symbiotic relationship in which one member benefited and second member is neither benefited nor harmed. कि ये ऐसे एसोसिएशन है जिसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को ना नुकसान होता है, ना फायदा होता है। Such association is known as a commensalism. Commensalism हमारे अमीबिया है, कई एग्जाम्पल है अमीबिया के, तो वो commensalism में आ जाते हैं। Mutualism is an association in which both species, both partner are benefited. मीन्स जो जहां भी है उनको बेनिफिट होता है। जैसे आप जानते हैं एक प्रोटोजोआ जो हमारे यहाँ कुछ इंसेक्ट में रहता है, वो उनको जो है ना, वो इंसेक्ट जो है ना लकड़ियों को खाते हैं, और लकड़ियों को उनको जो है ना वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिट होते हैं। कमेंसलिज्म में एक को फायदा, दूसरे को ना नुकसान ना फायदा, तीसरे को जो है ना पैरासाइटिक एसोसिएशन, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, ये तीन एसोसिएशन। नाउ दिस स्लाइड वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ये प्रोटोजोन टेक्सोन। So let's now discuss the protozoan taxonomy. Taxonomy is division or classification. आपने प्रोटोजोआ की टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी, फ्लैजिलेट्स, सिलिएट्स, ओके। लेकिन यहाँ जो है ना हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न जो है ना प्रोटो टेक्सोनॉमी ये है। तो मिस 2005 में वो मॉडर्न प्रोटो टेक्सा की टेक्सोनॉमी दी गई। लेकिन लिविनहुक से लेकर जो है ना, जब लिविनहुक ने पहले प्रोटोजोआ देखा था, उनको उन्होंने एनिमेक्यूल का नाम दिया था इन 1674। तब से कर आज तक प्रोटिस्टा की जो टेक्सोनॉमी है ना, वो फ्लक्स है, वो चेंज है, ओके। जैसे ट्रेडिशनली हम जो प्रोटोजोन्स को डिवाइड करते हैं वो 4 ग्रुप्स में करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोशन। ये आपने एफएससी की किताबों में पढ़ा होगा कि जिसमें फ्लैजिला है तो उसको हम मस्टिकोफोर क्लास में रखते थे, जिसमें सिलिया था तो उनको सिलिएटा, सिलियोफोरा या इनफ्यूसेरा कहते हैं, जिसमें जिसमें सीडोपोडिया उसको हम सार्कोडीना या अमीबा में रखते थे, और जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं था, वी वर प्लेसिंग देम इनटू द स्टेशनरी फॉर्म, वी कॉल दैट्स द स्पोरोजोआ। ये 4 क्लासेस, ये ट्रेडिशनल क्लासेस अभी भी वैलिड है, बहुत साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे जो
प्रोटोजोलॉजिस्ट हैं या प्रोटेस्टेंट्स हैं, प्रोटेस्टोलॉजिस्ट हैं, वो अभी जो है इस क्लासिफिकेशन को नहीं मानते। अभी ये जो ओल्ड हो चुके इनको छोड़कर उन्होंने नई क्लासिफिकेशन दी है। सो जो नई क्लासिफिकेशन है, जो पुरानी थी, तो वो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गेनील। लेकिन लोकोमोटरी ऑर्गेनील से ना उनकी जो ना नस्ल का आता पता नहीं कि किसी से ग्रुप से ताल्लुक है या नहीं है। तो रिसेंट जो है हमारे मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फाइलोजेनेटिक या फिजियोलॉजिकल एंगल से जो नई क्लासिफिकेशन आई है, उसमें वो जो 2005 में आई है, उनके मुताबिक जो है ना ऑल प्रोटेस्टा वर डिवाइडेड इनटू 6 सुपर ग्रुप्स। और ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोटेस्टोलॉजिस्ट ने दी थी। दिस ऑल प्रोटेस्टा आर डिवाइडेड इनटू 6 सुपर ग्रुप। सुपर ग्रुप एक नई इनोवेशन है जो लीनियस की टेक्सोनॉमी में, और उन 6 सुपर ग्रुप में जो प्रोटोजोन्स हैं वो 4 सुपर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो पहला जो सुपर ग्रुप है दैट वी कॉल द एक्सकेवेटा, और उनमें उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोस्टोम के बुनियाद पे की गई है कि साइटोस्टोम की स्पेशल स्ट्रक्चर है, उनकी फीडिंग ग्रुप है। एक्सकेवेटा का मकसद भी है इनका। इनके जो ग्रुप हैं सुपर ग्रुप के सब ग्रुप, जिसे हम कहते हैं फोर्निकेटा, पैराबेसेलिया एंड यूगुलोजा, इनके 3 हैं। और एग्जांपल जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, हिस्टोमोनास, यूगिलना, लेशमेनिया, ट्रिपनासोमा, ये इस ग्रुप के एग्जांपल हैं। सेकंड प्रोटोजोआ सुपर ग्रुप इज द एमोबोजोआ, और इनको जो है ना मीन्स इनमें जो मेजर फीचर है कि उसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीडोपोडिया पाए जाते हैं, या टेस्टिस हैं या नहीं है, या उनमें स्पेशल टाइप जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशल टाइप की जो है ना ट्यूबुलर क्रिस्टी है, यूनिन्यूक्लियेट भी हैं, मल्टी न्यूक्लियेट भी हैं, सिस्ट भी पाए जाते हैं। तो ये जो है ना उनके कुछ फीचर्स हैं। इसके जो ग्रुप हैं सुपर ग्रुप में ट्यूबुलिना, अकेंथो अमीबिडा, एंट अमीबिडा, ये जो है ना इस एमोबा तो एग्जांपल क्या है, अमीबा, अकेंथो अमीबा, नेगलरिया, सेम वे एंट एमोबा, ये जो है ना इनके एग्जांपल्स हैं। थर्ड जो सुपर ग्रुप है राइजेरिया, राइजेरिया में स्पेशल जो है ना थिन सीडोपोडिया पाई जाती है, उसको हम फिलोपोडिया कहते हैं। और इस ग्रुप को फर्दर डिवाइडेड इंटू फोरामेनिफेरा एंड रेड्यूलेरिया। रेड्यूलेरिया तो शक्ल की वजह से, फोरामेनिफेरा उसमें पोर्स पाए जाते हैं, और ये दोनों जो है ना जोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ऑयल पर्सपेक्टिव के हवाले से जो है ना बहुत ज्यादा मशहूर है। और एग्जांपल ग्लोबिजेरिना, डायफिलिजा, अकेंथोमेट्रा, ये जो इनके एग्जांपल हैं। फोर्थ जो सुपर ग्रुप है दैट्स क्रोमल वियोलेटा। क्रोमल वियोलेटा में दे हैव प्लास्टिड स्ट्रक्चर, ये इनके अहम फीचर है। लेकिन आस्ता आस्ता उनके पहले तो था, लेकिन देन दे हैव लॉस्ट दैट प्लास्टिड। इनके जो ग्रुप हैं, एक एक को हम क्रिप्टोफाइसी, हेप्टोफाइसी एंड देन स्ट्रेमिनोफिल, ये 3 ग्रुप हैं। लेकिन ये तीनों जो है ना प्लांट में पढ़ाए जाते हैं। जो हमारा जो हम सब ग्रुप पढ़ते हैं एल वियोलेटा जो है ना वो प्रोटोजोआ से ताल्लुक है, उनका हम डिस्कशन करते हैं। तो इसमें क्रिप्टोमोनास है, डायटम्स हैं जो हमारे काम का नहीं है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए। एपिकॉम्प्लेक्सा ग्रुप है, उसमें प्लाज्मोडियम, टोक्सोप्लाजा, इमेरिया, क्रिप्टोस्पोरिडिया, देन इसमें जो सीडिएटेड इन सिलोफोरा, पैरामेशन, डाइनोफ्लेजिलेट्स बहुत मशहूर हैं। रेड टाइड्स के हवाले से जो है ना जिम्नोडियम मशहूर है, सीराटियम। तो ये इस ग्रुप में ये एग्जांपल्स हैं। मेरे ख्याल में आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। ये सेम में प्रेजेंटेशन जो है ना नीचे